Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Anushka. Good morning. Sir. Good Seeing morning, you after a sir. long time. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Welcome. Sir, Good morning. Good morning, Good morning. sir. it's a beautiful morning today. Beautiful morning. Wonderful morning. Yes. बहुत बढ़िया. Sir, very good morning, sir. Good morning. Good morning, Bindu ji. Good morning. Thank you, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Madhu ji. Good morning. Madhu ji, you stay here only in at Valkeshwar around? No, I stay in Nepal. Acha, you stay in Nepal. Okay. So there was one Kabra, so who was staying nearby. Yeah. Kabras are there, yeah. My family is also there. My sister also stays there. Okay, so Girish Kabra was in my school together, so there was some relations over there. Anyway, okay, welcome everyone. So anybody would like to share something? Good morning, sir. Good morning. Good morning, Rajan. Good morning. कोई कुछ बात कहना चाहेगा कि हमारी जो गेम्स खेल रहे हैं, देखिए छोटी छोटी बातें दिन भर होती रहती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमको समझ में आता है कि अरे ये तो हमने बोला और ये हो गया, हमने बोला और ये हुआ. ऐसी कुछ मतलब एनी सच स्मॉल इंसिडेंट्स इज हैपनिंग इन योर लाइफ? सर, कल लाफिंग क्लास में ना मेरे सर में इतना दर्द होने लग गया था हंसते हंसते, और काफी देर तक झंझनाहट होती रहती थी सर में. वेरी गुड. अंदर से कोई झकझोर दिया सर को. बहुत बाद में बहुत अच्छा लगा सर. चलो बढ़िया, कोई वांदा नहीं, हंसने से सर दुख रहा है कोई वांदा नहीं. मैंने बोला था पहले से, पेट दुखेगा, ऐसा यहाँ पर चिक्स दुखेंगे, चेहरे पे थोड़ा पेन आएगा, बट अच्छा पेन है ये, सो इट इज ओके. ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग? कोई बताना चाहेगा कुछ अपनी बातें जो उनकी लाइफ में हो रही हैं? Good morning, sir. Good morning. Sir, I want to share कि EFT technique is very effectful for me, effective. थोड़ी सी भी चीजें होती हैं कि जैसे कभी सिर में दर्द हो रहा है रात को, या कभी थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, और एक आध बारी करने से वो तुरंत एकदम जादू की तरह सही होता है. तो आई एम यूजिंग EFT technique and it is very beneficial for me. So thank you so much, sir.
वाह, देखिए ये EFT टेक्निक जो है ना, आपके जो बॉडी के जो पेन्स होते हैं ना, उसके लिए बहुत काम की चीज है. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी नाइस टेक्निक. इसको थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. देखिए, हर एक टेक्निक को आपने 8-10 दिन, 15 दिन, महीना उसको प्रैक्टिस करते जाए. सी, दीज आर सिंपल प्रैक्टिसेस. ये सिंपल गेम्स हैं, माइंड गेम्स हैं, और जिससे आप अपने जो पेन है, दुख दर्द हैं, जो लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं. इट इज सिंपल. Thank you so much. थैंक यू सो मच. थैंक यू रिचा फॉर शेयरिंग. Thank you. एनीबडी एल्स, कोई बताना Yeah, चाहते Suresh Agarwal, sir, from Kolkata. हाँ जी, बताए. Yeah, like affirmations, writing affirmations are always keeping me in happy zone. I'm वाओ, writing, like I'm feeling so great writing affirmations. वंडरफुल वंडरफुल. ओके. Thank you so much. और आपको पता ही नहीं होगा कि आप जो लिख रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं अफर्मेशंस बार बार. आई विल, ओके, so this is very interesting. So I think let some more people come in now next 2-3 minutes. I'll share you one incident. कल हमारे स्कूल का there was one girl called Mona, उसकी डॉटर की शादी थी, तो वहां पर हम मिले थे. तो I'll share that incident after some time because very interesting. So देखिए, affirmations आप क्या कर रहे हैं. Affirmations you are writing down. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, if you can feel the affirmations, feeling important है बस. If you can feel the affirmations, you are going to attract it in your life. इतनी सिंपल सी बात है, आप करें. affirmations को मैं सबसे बहुत हाई दर्जा देता हूँ. Yes, sir. जो आप बोल रहे हैं ना बार बार, वो भी एक affirmation है. Sir, one more thing. I'm doing one more thing. I'm recording my affirmations in my video mode of camera, which is also giving me a great feeling. Oh, it's an amazing. देखिए, जब मैंने वर्कशॉप किया था, एक आयुषी करके लड़की थी दिल्ली की, उसके अफर्मेशन उसकी परमिशन से मैं हमेशा शेयर करता हूँ. मैं आज अगर हो सका तो आई विल शेयर हर अफर्मेशन. 15-20 मिनट के हैं. एक्चुअली क्या हो रहा है, इफ द होल क्लास इज अलाइन, तो आपको वो ऑडियो समझने में आएगा. बट जिसको भी फायदा होगा. मैं आपको आज मेरा भी ऑडियो शेयर करूंगा, और मेरा ऑडियो कॉपी करके आयुषी ने अपना खुद का ऑडियो बनाया था. Yes, sir. She was in the state of depression to the extent of suicide also. She was from Delhi. उसका काउंसलिंग किया मैंने 2-4 बार, 10 बार बातें की उनके साथ में. उन्होंने ये ऑडियो बनाया. टुडे शी इज वर्किंग इन वन ऑफ द हाईएस्ट पेड BPOs or IT companies or somewhere in Bangalore. उनके फादर, there was some lot of issues in her family, but the point is what helped her was affirmations. ये रियल स्टोरी है, अपने वर्कशॉप की स्टोरी है. अबाउट maybe 1 or 2 years ago, this girl was there in one of the workshops. फिर she talked to me, बोला this ये ऐसा हो रहा है. She felt like doing suicide. आज मुझे याद आ रहा था. I mean, this story today only I recollected. Affirmation की मदद ली उसने Sir. affirmation. Sir, I want to show you few cards because I stay in Nepal. I have ordered, but I made all my gold cards seeing your drawings, seeing your cards. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. तो यहाँ actually order करके आने में time लग जाता है नेपाल. So I thought I Wow. could start doing it. I'm so happy about it. See, I'll tell you, ये जो गोल्ड कार्ड्स है ना, देखो ये दुनिया के जब टॉप लोग आपको कुछ सिखा रहे हैं, गोल्ड कार्ड बनाओ. देखो सिंपल है, अगर नहीं, छोटी छोटी बातें रहती है, बट यही तो टेक्निक्स हैं, यही आपके काम आएंगी. अफर्मेशन, अरे ऐसे बोलने से क्या होता है? अरे आपकी जो जिंदगी आज तक की जो हुई है ना, वो आपके बोलने और सोचने की वजह से हुई है. अब ये तो हमारा पास्ट है. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बोलना
और सोचना अगर हमने चेंज कर दिया तो हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग इट? उसको सपोर्ट करने के लिए आपको गोल कार्ड लगेंगे, अफर्मेशन कार्ड लगेंगे। अब आप सोचोगे कि भाई क्या जरूरत है मुझे, तो यू आर राइट। आपकी कौन क्या मदद कर सकता है? जब आप अपने सपनों के लिए 2-4 हजार रुपए नहीं खर्चा कर पाओगे, नोबडी कैन हेल्प यू। फ्री में आ रहे हो, डू नॉट टेक एनीथिंग फ्री। व्हेन द स्टेक्स आर हाई, व्हेन द स्टेक्स आर हाई, द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट। याद रखना ये बात को। दाव बड़ा रहेगा ना तो बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बढ़िया इफेक्ट आएगा, बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। आप अभी स्टेक पे दाव पे लगाए, सुबह 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं, 6 बजे क्लास में आते हैं। क्यों आते हैं? नाउ योर स्टेक्स आर गेटिंग हायर, ऑल्दो यू आर गेटिंग इट फ्री। आई ऑलवेज टेल पीपल, आपका ये क्लास फ्री नहीं है। अगर आप मेरे क्लास में आ रहे हैं, आपको अगर कुछ फायदे हो रहे हैं, याद रखना, आपने आज किसी ना किसी को 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जैसी आपकी कैपेसिटी, 10 रुपया मिनिमम आपको किसी ना किसी को देना है कि आज मुझे बहुत बढ़िया ज्ञान मिला है, वो मुझे काम आने वाला है, ये ले 10 रुपया भैया, बढ़िया मजा करना। एंड यू कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट, 1000 रुपीज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, 5000 नो प्रॉब्लम। गिव इट टू योर केयर टेकर्स, आपके सिक्योरिटी वॉचमैन, किसी को भी केयर टेकर, कोई झाड़ू मारता है। मैं एक बार बॉम्बे पूना व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, सो वहाँ पर वो जो साफ सफाई वाले रहते हैं ना, क्योंकि इट्स एक्सप्रेस वे ना, वहाँ पर जो मॉल था ना वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मतलब सबके टेबल साफ कर रहा था। एंड आई वाज लाइक अमेज्ड, सेल्फलेस काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था। आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम, आई गिव हिम मनी बिकॉज दैट इज माय होमवर्क। आपका भी ये होमवर्क है, याद रखना, अच्छे मन से देना पैसे। ओके, सो 6 o'clock, so let's start. Welcome to this session, welcome to this wonderful day, new day, and we all say to ourselves, today is the best day of my life. Today is the best. Today is the Today is the best best day of Good my morning. life. Good morning, Today is sir. the best Good morning, sir. मजा morning, आने वाला sir. है, आज तो मजा आने वाला है। तो मजा Good things are coming to me. Remember, all good things are coming to me. All good things. अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं हम। वाओ, आज तो मजा आने वाला है। The most of it. सोना निकालता जहाँ खोदता हूँ सोना निकालता हूँ। देखिए कैलाश जी रोज बोल रहे हैं, सोने की तो बारिश हो रही है। खोदता हूँ यस, जहाँ खोदता हूँ सोना निकालता हूँ। पैसे की तो बारिश हो रही है। सोना पैसे की बारिश होती है। रेनू जी हमेशा ये सेंटेंस पक्का बोलती है। ओके, तो देखिए, ओके, सो नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आई नीड एवरीबडी हेल्प ऑल्सो, आफ्टर दिस आई विल शेयर दैट। कल हमारे स्कूल के बच्चों की मोना करके लड़की थी हमारे स्कूल में, उसकी डॉटर की शादी थी, तो हम कल सब स्कूल वाले मिले थे कल। So all after, I mean, we passed out 10th standard in the year 1981, 41 years ago. So this was my whole classmate, about I think 13-14 of them were there. 13-14 लोग थे कल, 14 लोग। तो वहां पर हमको एक बात याद आई, देखो हमारी जुबान में कितनी ताकत है, वो आप समझ लो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जुबान में ताकत होती है। ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस आपको मैं शेयर करता हूँ। एक बार मैंने बोला था मिराया गिरी, अरे गिर जाएगी, मिराया फेल। रिमेंबर माय फादर सेइंग। Then I told you one more story. Yesterday I told you that Malti Giri. So the girl who was there, the Disha, she is the daughter of Malti, और मालती छाया की किटी में है। तो गिरी थी 2 साल पहले। जब उन्होंने उसकी बातें शुरू की, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट अनकॉन्शियसली। 2-5 अरे ऐसा हो गया, वो लड़की भी बताई हाँ ऐसा हुआ, वो बता रही है ऐसा हुआ, एंड एवरीबडी वेंट इनटू द एनर्जी जोन। और जैसे ही खाना खत्म हुआ, कल की किटी, मतलब मैंने बताया था किटी पार्टी खत्म हुई, 3 लड़कियां गिरी एंड एक का मोबाइल गिरा, एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट यस्टरडे, आधी चम्मच
जब वो 4 महीने पहले, जब 2-3 महीने पहले जब छाया ने मुझे ये बात बताई, we were laughing and laughing because we were laughing about law of attraction, how law of attraction was working. मालती गिरी थी 2 साल पहले, बट उन्होंने जब किटी में उसका डिस्कशन शुरू किया तो 3 लोग गिरे उस दिन। और one thing I forgot was रात को जब हम ये बातें कर रहे थे तो छाया भी गिरी थी बेडरूम में, like ठेस लगी थी उसको। So it is about what you are talking. तो कल हम जो स्कूल में बात कर रहे थे, जब हम बच्चे बैठे थे, तो ऐसी बातें करते एक लड़की थी हमारे स्कूल में, तोरल खांडवाला. Now she is in USA. So Munira, are you there today in the workshop? So Munira is also from my classmate. She is in Atlanta today now. तो हमने ये बात याद किया कि एक कैलाश करके लड़का था, वो उस लड़की के प्यार में पागल हो गया था. तो इन द स्कूल की बातें बता रहा हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल. एंड ही वाज सो मच इन लव विद दैट गर्ल एंड ही वाज अ गुड सिंगर. ही यूज्ड टू सिंग द सॉन्ग, तुम किसी और की हो जाओगी तो मुश्किल होगी, तुम हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही का. एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल. Toral was very beautiful in our school days. हमारे पूरे एरिया में, मतलब she was very famous, बालकेश्वर एरिया में in that time, and she was amazing girl. And this boy had fallen in love, and he used to, which was the title heading. ये गाने का starting line क्या है? तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम अगर मुझको तुम ना अगर चाहो मुझको तो ना कोई चाहो, हाँ यस, तुम अगर मुझको ना चाहो मुझको तो ना कोई चाहो बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी. तो हमने वो गाना भी याद किया. And then I said, and now the position of Kailash, मतलब कैलाश का पैसे का हालत, I mean everything is down. So that time he had lots of money, and today he has no money because he did not get married to Toral. मतलब that was over. School के बाद it was all over. मैं बोला देखो, he was attracting that time only. तुम किसी और, मतलब तोरल किसी और की हो गई तो मुश्किल हो गई कैलाश को. So be very, 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 very cautious what you are speaking. आपको नहीं पता है. कैलाश जो हमारे स्कूल में बहुत, मतलब he was hero. गाने गाता था, शायरी बोलता था. He was like amazing, very talented boy. I mean, I'm just randomly relating one thing. Please don't take it the other way. But my point of view is, हमारा जो स्टडी सब्जेक्ट है वो ये है कि हम जो बोलते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, पूरी शक्ति हमारे जुबान में है. Are you getting it? Did everybody get something out of this conversation? Yes, sir. So, Yes, sir. sir, I'm having a boutique here in Kolkata. So here, yeah, day before yesterday, I was having my opening of my brand launching. So that day, when I was making bill, I was seeing the same name. People are 4-5 people like Meena, or Madhu, or all M's are coming to me. Like it was magic for me. Okay. So maybe something you are very, I mean, let's not go into deep. You will get the answer. आपको आंसर मिलेगा. Anyway, my point इतना ही है, हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये एक सेंटेंस आपकी जिंदगी बदली कर देगा. मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी में जो भी हालात आज हैं is because of what you have thought, what you have spoken, what you have believed in the past. अब यही सेंटेंस को हम यूज करेंगे कैसे? आज के बाद हम जो चाहिए हमारी जिंदगी में उसी के बारे में बोलेंगे, उसी को लेके अच्छा बोलेंगे, अच्छा बिलीव बनाएंगे. सो व्हाट आई एम डूइंग टुडे, व्हाट आई एम थिंकिंग टुडे, व्हाट आई एम टॉकिंग टुडे, आई एम अट्रैक्टिंग इन द फ्यूचर. अब तो सुधर जाओ. आर यू गेटिंग दिस? अरे मेरा तो मरने के बाद ही दर्द जाएगा. खत्म हो गया बात, बस दर्द जाएगा ही नहीं. मुझे नहीं लगता मेरा को ठीक होने वाला है. मुझे नहीं लगता मैं 2-4 महीने तक भी ठीक होऊंगा. अरे तो क्या बोल रहा है भाई? आर यू गेटिंग दिस सिंपल टेक्निक्स? सिंपल गेम है, ज्यादा दिमाग है.
Okay, if somebody keeps on telling you something, how to avoid that? देखें. Okay, so now this is a very good question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अब होता क्या है, लोग हमको बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, एंड वी गेट इन्फ्लुएंस. नाउ ऑनवर्ड्स, पहले हम छोटे बच्चे थे, हमको नहीं समझ में आ रहा था. बड़े हो गए कभी भी नहीं समझ. मैं आपको आज समझा रहा हूं, अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे तो अब, एंड इफ यू डू नॉट एग्री, तो आपने उसको एनर्जी नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है, तो क्या आप कुत्ते के सामने भाव 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 करते हैं? कैसे? आर यू गेटिंग इट? व्हाट वी विल डू इज, थैंक यू सर, थैंक यू सर. ओके, तू तो ऐसा है, तेरे से कुछ नहीं हो गया. ओके, बिकॉज दैट इज नॉट माई बिलीफ, दैट बिलीफ उसका है. अब मेरे को जरूरत नहीं है उसके साथ आर्ग्यूमेंट करूं, झगड़ा करूं, मेरी एनर्जीज को खराब करूं. नहीं, आई विल इग्नोर. ओके, बिंदु जी हैं यहाँ पर, राइट? बिंदु जी, आर यू देयर? सी, आई मीन आई कैन. उनके देवर या उनके रिलेटिव जो हैं विमल परवाल, तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई. विमल परवाल इज वर्किंग इन नागपुर इन अ वेरी बिग कॉर्पोरेट कंपनी. ठीक है, तो उसके ऊपर अभी वो काम कर रहा है कॉर्पोरेट में, तो बॉसेस भी चिल्लाते रहते हैं, ये करता है. तो उसने मुझे एक अच्छी बात बताई कि अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है, अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है, तो आपने रिएक्ट इसके लिए नहीं करना क्योंकि वो एक बीमार आदमी है. आप समझे, वो तो दया का पात्र है. ये वर्ड मैंने कम से कम जानबूझ के विमल से 2-4 बार सुन लिया है मैंने ये बात, क्योंकि ही इज राइट. अगर कोई आपके ऊपर बार बार गुस्सा करता है, बार बार, मतलब आप समझ लो कि उसमें कुछ बीमारी है. आप सुन लें, वो कितना, ही इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ टेंशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए वो गुस्सा निकाल रहा है, अंदर से जल रहा है, वो एंगर है. अब आप उसके सामने और गुस्सा करोगे, तो आप क्या कर रहे हैं? ले और पेट्रोल डाल रहे बेचारे के ऊपर, ले पेट्रोल डालते और जलता है वो, और जलता है. आर्ग्यूमेंट ना करें. फॉर एग्जाम्पल, योर हस्बैंड, लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल योर हस्बैंड, ही स्टार्ट शाउटिंग एट यू. मे बी ही हैज गॉट सम फायरिंग इन हिज ऑफिस, यू डोंट नो. और वो घर के ऊपर आके कोई भी बात के ऊपर, गलत बात के ऊपर भी आपके गुस्सा निकाल रहा है. अब वो करेगा क्या? अच्छा, फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड, ये तो आपका हस्बैंड है. अब आपने इसकी मदद करना है. वो कहाँ गुस्सा निकालेगा? बॉस का पूरा गुस्सा खा के आया है, दुनिया भर का पेमेंट्स नहीं आ रही है, टेंशन है, जो भी है. अब आपने भी चालू कर दिया झगड़ा करना, हो गया कांड. दैट इज नॉट द वे. अब वो बात बता रहा था इन कंटेक्स्ट के, उसके बॉस उसके ऊपर कभी कभी चिल्ला रहे थे. ऑब्वियसली, अब बॉस के ऊपर इतना सारा टेंशन है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, तो वो बोलता है मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता. और वो धीरे 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 करके इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंच गया है कि वो कंपनी का प्रैक्टिकली ही इज नंबर 2. मतलब उनको ब्रदर्स को छोड़ के उसके बाद में उसका, क्योंकि वो मैच्योरिटी ही उसको वहां तक लेके आई. हम तो क्या करते हैं, किसी ने हमको कुछ बोला कि फिर तो उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ूंगा नहीं साले. आर यू गेटिंग दिस सिंपल साइंस? समझ में आ रहा है ना? अब हमारा भी क्या होता है, जिसके जिसके बड़े सपने नहीं होते हैं ना, उसको कुछ काम ही नहीं है, वो भी भिड़ जाता है उसके ऊपर. अब हमको हमारी जिंदगी, लाइफ अच्छी बनानी नहीं है. अगर किसी ने मेरे को गुस्सा किया, मुझे कुछ बोल दिया, तो मैं छोड़ता नहीं. इट इज सो सिंपल. ओके, सो टुडेज चैप्टर. Okay, any questions? 1 or 2 questions we can take now before we start, because today we have invited Sarita ji. Sarita ji गुवाहाटी में रहते हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया फॉरगिवनेस प्रोग्राम कराया है. तो आज हमको फॉरगिवनेस को लेके करने वाली है. So we have invited her at 6:45 today. So मैंने भी बहुत अच्छी, how many of you all have attended my forgiveness sadhana? जो मैं साधना कराई है फॉरगिवनेस की, एनीबॉडी हैज अटेंडेड हियर?
That is also good. Yes, thank you, Babita ji. So, yeah, So that is also good forgiveness sadhana. Maybe we can do it some other day. But today we have invited Sarita ji from Guwahati. उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया बनाया है. So even I wanted to understand, I wanted to learn. So she will be there. So coming to, yes. So I hope you had liked the forgiveness what we had done. Okay, forgiveness होता क्या है? So now today I am going to read this chapter on law of forgiveness. So this is from my book. Can somebody share this page? And the picture. Okay, can somebody explain this picture? ये जो picture है, can somebody explain? जैन को समझ में Lord आया? Mahavir. It's Okay. Lord Mahavir. हाँ. And he was bitten by a snake. So that's the story. Okay. So होता क्या है? महावीर जो महावीर भगवान थे जैनों के. So I am a Jain. तो महावीर भगवान was a king. राजा का बच्चा था और उन्होंने सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया. महावीर is the person, महावीर भगवान जो हैं हमारे, he is the founder of our religion and he was into the jungle because he had, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था. तो राजा के बच्चे थे, अब उन्होंने त्यागा सब कुछ. he left into the jungle and in the jungle उनको जब वो ध्यान में रहते थे, मतलब when he was in the state of meditation, a snake bit him. सांप ने उनको डसा. जब उनका जो instead of blood, milk was flowing out of his body that time. I mean, this is all the stories. How far they are true, maybe. But the thing is, when Mahavir Bhagwan opened his eyes, he had already forgiven. Absolutely. Same thing. जब वो meditation करते थे, काफी लोगों ने उनको जलाया, कानों में खीले मारे, when he was doing meditation, और उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो meditation में ही थे. But he could forgive them all. The only reason was उनके सपने बड़े थे. He want to attain, मतलब उनको एक बहुत ऊंचा लेवल अटेन करना था. उनके मकसद बड़े थे, उनके सपने बने थे. हमने भी फॉरगिव इसके लिए करना है क्योंकि हमारे सपने पूरे नहीं होंगे अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो. प्लीज अंडरस्टैंड, फॉरगिवनेस इज फॉर आवर गुड. जो मैंने लॉ ऑफ फॉरगिवनेस होता लिखा है वो ये है, we cannot be forgiven until we forgive others. We cannot be forgiven. देखिए, आपने जाने अनजाने में कितनी सारी गलतियां की हैं, जाने अनजाने में कितने लोगों के पैसे नहीं दिए हैं, जाने अनजाने में कितनों का मन दुखा दिया है. जब तक आप लोगों को माफ नहीं करोगे, you will not be forgiven. So always remember, हम forgiveness इसके लिए करते हैं. forgiveness मतलब माफ करना. माफ करना हम माफ इसके लिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है. There is a saying, anger is something like holding चारकोल, मतलब जलता हुआ कोयले को हम हमारे हाथ में रख रहे हैं with the intention of hurting the other people. That is a revenge. बदला, गुस्सा, एंगर. एंगर क्या होता है? साले को छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा. अरे भाई, तेरा खुद का हाथ जल रहा है. It is like holding charcoal in your hand with the intention of hurting someone. This is so simple. जलते हम रहते हैं और सामने वाले को तो पता ही नहीं. साला मेरा पैसे खा गया, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, छोड़ो, पैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. आप रोज वो की वही स्टोरी सुनते हैं. आप रोज वो स्टोरी हैं, सामने वाले को तो पता ही नहीं है. Are you getting this? किसी ने आपको थप्पड़ मारा, अफसोस करते रहते, रोते रहते. Now let me tell you, there are stories of rape, molestations, and you are suffering. सामने वाले को तो पता ही नहीं है. Are you getting this?
Now let me tell you one very good story, one very good forgiveness story which I always want to tell everybody. And जिन्होंने भी हमारे अश्विन मैम के वर्कशॉप्स किए हैं उनको सबको पता है. Now there was one girl from Nepal. नेपाल से एक लड़की आई. She fall, उसकी मतलब यंग बच्ची, उसका प्यार हो गया एक यंग लड़के के साथ में नेपाल में. अब नेपाल में दोनों का प्यार हो गया तो घर वालों ने कुछ ना बोला, आई डोंट नो जो भी हुआ वो, तो दोनों भाग के दिल्ली आ गए. लड़का लड़की फ्रॉम नेपाल. अब आ गए नेपाल, लड़की तो यंग थी. अब वो बच्चा, वो लड़का बदमाश निकला और उस लड़की को उसने बेच दिया. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दिस स्टोरी? रियल स्टोरी. Yes, sir, I know. या अब हुआ क्या, इस लड़की को उसने बेच दिया प्रोस्टिट्यूशन में और उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई. अब जिंदगी खराब हो गई. दिस गर्ल वाज नॉट प्रिपेयर्ड. ये क्या हो गया मेरे साथ? एंड शी वाज इन लव विद द बॉय एंड एवरीथिंग वेंट haywire. Now this girl attempted suicide, ये वो, बट जो भी हुआ सो हुआ. और उसके बाद में उसको एक बच्चा भी हो गया. That girl was pregnant, उसको बच्चा भी हो गया. Now maybe this story went on for 3, 4, 5 years, I don't know. And now she was detected with AIDS. उसको एड्स की बीमारी हो गई उस लड़की को. एट इस दौरान अश्विन मैम ने उसकी मदद करना चाहा. उस लड़की की मदद अश्विन मैम ने की. जब उसने की, अश्विन मैम ने शुरुआत कराई उस लड़की की ठीक करने के लिए. उन्होंने शुरुआत कराई फॉरगिवनेस से. अब मुझे बताओ, ऐसे लड़की के हालात ऐसी, आई डोंट वांट टू लंबा चौड़ा करके मुझे उसकी स्टोरी आपको नहीं समझानी है कि क्या क्या हुआ उसके साथ. यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड विद द गर्ल. एंड नाउ अश्विन मैम इज टेलिंग हर कि पहले आप उसको माफ करें, उस लड़के को माफ करो. उसका प्रोसेस कराया. दिमाग में से उस लड़के के बारे में जितनी नेगेटिविटी थी वो सब बाहर निकालाई. और उसके बाद ही that लड़की, that girl became healthy, fit, fine, absolutely normal. और टुडे आज वो लड़की कुछ एनजीओ चलाती है, काफी लोगों की मदद भी कर रही है. दिस इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस. अगर आपके शरीर में कोई भी बड़ी बीमारी है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके जिंदगी में सब याद कर लेना और सबको माफ कर देना. सबको माफ कर देना. अगर आपके, मैं आपको बता रहा हूं, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, बिकॉज बीमारी इज अ ब्लॉक्ड एनर्जी. आपके शरीर में वो एनर्जी ब्लॉक हो गई है, उसके वजह से आपको पेन होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं. बीमारियां पे बीमारियां चलती रहती है. क्यों हो रही है? क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है ना. वो नेगेटिविटी को कैसे बाहर निकालोगे? फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस नहीं कर पाता आदमी. बोलना आसान है, लेकिन जिसको ऊपर बीती है ना, उसको याद रहता है, उसको भुलाना बहुत डिफिकल्ट है. उसके लिए आपने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीना, आपने फॉरगिवनेस साधना करनी है, जो मेरा भी एक रिकॉर्डिंग है और आज सरिता जी भी आपको सिखाएंगी. देखो, बोलना बहुत आसान है, माफ करो, राइट. अभी हमारा वर्कशॉप कौन सा चल रहा है? इम्प्लीमेंटेशन. मैं आपको कोई भी चीज जो बता रहा हूँ, उसके इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसमें से बाहर कैसे निकलना, उसके फॉर्मूले समझा रहा हूँ. अब आपने फॉरगिवनेस साधना रेगुलरली करना है. आर यू गेटिंग दिस? फॉरगिवनेस. सो फॉरगिवनेस, देखो, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. हम सब गलती कर सकते हैं. आपका हस्बैंड गलती कर सकता है, आपका फादर इन लॉ कर सकता है, मदर इन लॉ कर सकता है, आप भी गलती कर सकते हैं. बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स. इट इज ओके, बट नाउ कम आउट ऑफ इट. देखो, आप जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना पहाड़ पे चढ़ना, राइट. अभी आप सोचे कि आपके पीछे एक बैग है 10 किलो का, पूरा वजन, वो कैरी बैग.
आपका चलना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। योर जर्नी विल गोइंग टू बी डिफिकल्ट, तो आपकी लाइफ की जर्नी भी इतनी ही डिफिकल्ट होगी जितने ज्यादा आप पुरानी गंदी यादें कैरी करके चलते रहोगे। आपकी जिंदगी में आप दिन भर स्ट्रगल करते रहोगे, आप ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। दिस इज द सिंपल थॉट ऑफ फॉरगिवनेस। अब आपने क्या करना है, ये पीछे की जो आप हेवा सेक के अंदर जो पूरा जूनी मेमोरीज, गंदी मेमोरीज, इसने मेरे साथ ये किया, चाचा ने मेरे साथ ये किया, पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मम्मी ने नहीं किया, मेरी वाइफ ने नहीं किया, मेरे बच्चे ने नहीं किया, ये वो सब निकालो। आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। अदरवाइज यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग। आप ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे और उसको याद कर करके और थोड़ी बहुत एनर्जीज को ब्लॉक करोगे। एनर्जीज ब्लॉक होंगी, आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, हड्डियां दुखेंगी। देख लो, सुन लो मेरी बात, वरना अनुभव कर लेना। क्यों? अब इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा के गए हैं, अब नहीं सुनना तो नहीं सुनना, तो हो जा भाई, तू तेरी जिंदगी तेरे हिसाब से। मैं तो महावीर भगवान की भी नहीं सुनूंगा, मैं अश्विन मैम की भी नहीं सुनूंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी नहीं सुनूंगा, मैं तो मेरी मर्जी करूंगा। थैंक यू फॉर वोटिंग। सुधर जाओ, अदरवाइज आपको ही भुगतना है। एंड इट इज सिंपल टेक्निक्स। अब फॉरगिव करो, पर करना कैसे है? आओ बच्चा, हम सिखाते हैं, अब उसको प्रैक्टिस करते जाओ। सिंपल है। देखो, माइंड है, मैंने आपको कुछ भी बोल दिया तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ भी बोला, आपका माइंड नहीं एक्सेप्ट करता। अब आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया? रिपीटेशन, रिपीटेशन। जैसे आप रिपीट करते जाओगे, धीरे 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 आपका माइंड प्योर बन जाएगा। सेम थिंग वी डिड विद ग्रैटिट्यूड, राइट? सो ओके, वन मोर थिंग अबाउट बाइबल। ओके, जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस के ऊपर, अब एवरीबॉडी नोज जीसस क्राइस्ट, जैसे मैंने आज महावीर भगवान की बातें की, जीसस क्राइस्ट, गॉड्स, वो हमको सिखा के गए हैं ये सब चीजें, पर हम नहीं सुनते हैं। जीसस क्राइस्ट, एनी क्रिश्चियंस इन अवर ग्रुप नाउ, any Christian now attending this workshop now? कोई क्रिश्चियन है? ओके, जब यस, ओके, क्रांति इज देयर, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब उनको खिले मार रहे थे, मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड लुकिंग मैन, उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे वो अलग टाइप के थे, तो वहां के जो लोकल लोग थे वो उनको एक्सेप्ट नहीं किए, आपको पता है, और उनको वो क्रॉस के ऊपर उनको खिले मार दिए गए। कैन समबडी शेयर इन देयर ओन लैंग्वेज? मतलब अगर कोई क्रिश्चियन बताएगा तो अच्छी बात है, मजा आएगा। वो मरते मरते क्या बोलते गए? गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। फॉरगिवनेस। So any Christian would like to share something on this? See, this is all, लोग उसको खिले मार रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भगवान इन बच्चों को माफ कर देना, इनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या गलती कर रहे हैं। It is so important. And the basis of Christianity is faith. Faith. Christianity is one of the very beautiful religion, और उसका मार्केटिंग बहुत अच्छा हुआ है। उसमें जो सिखाए जाते हैं उनको फॉरगिवनेस। जैनिज्म में हमको फॉरगिवनेस सिखाया जाता है। हमारा एक त्योहार होता है 8 दिन का, उस दिन के बाद में हम सबको मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। हम मिच्छामी दुक्कडम करते हैं क्षमा होने के दिन। हाँ, मिच्छामी दुक्कडम करने में हम एक सेंटेंस भी बोलते हैं, मतलब मेरे जाने अनजाने में, अगर मेरे बोलने या कोई एक्ट में, मतलब मेरे कोई कार्य करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे तहे दिल से मिच्छामी दुक्कडम कर देना। हम साल में एक बार करते हैं, ये कंपल्सरी। Okay, any Christian would like to share something on forgiveness here? Because it is one of the religion, उनका religion का ये एक पार्ट है। No one?
ओके, नो प्रॉब्लम. सो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया. जीसस क्राइस्ट सेड वाज, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू. उनको पता ही नहीं है, वो उनको खिले मार रहा है और वो ये बोल रहे हैं उनके लिए. अब हमको तो किसी ने गाली भी दे दी ना तो हम छोड़ते नहीं. तो हम बहुत मतलब वी आर हीरो ना, हम सिकंदर हैं. छोड़ूंगा नहीं साले, छोड़ूंगा तो नहीं. मेरे साथ ऐसा किया तो नहीं छोड़ूंगा. मुझे ये बोला, मेरा इंसल्ट, मेरा छोड़ना मत, तुम पकड़ के रखना और जिंदगी खराब कर देना. लेट मी टेल यू, मैं आज आपको जो बता रहा हूँ फॉरगिवनेस का, मेरी लाइफ में देयर आर 2 or 3 वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस जहां मेरी गलती नहीं थी. आई हैव सफर्ड अ लॉट. मैं एक केस में तो मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड, और उस फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसी चीटिंग की टू अ वेरी हाई एक्सटेंट. I'm telling you, I don't want to share now all those things what happened to me, but 3 incidences wherein I have helped people and I have suffered to a very embarrassing situations. अब वो situation इतनी भारी पड़ती थी मुझे, इतनी भारी, I could not come out of it. One situation I remember, it was in the year 2003 and one was in 2008. 2003 वाली सिचुएशन मुझे पगला कर दिया था. मतलब I was like frustrated, mad. मैं मतलब क्या करूं, and I was equally powerful. I was equally powerful. मैं कुछ भी कर सकता था, मैं तो खत्म कर सकता हूं. I mean that went on, and then one day, so I have got तिरुपति बालाजी में मेरी स्पेशल पूजा रहती है 5 days in a year. I get special entrance, I get special पूजा. मैं भगवान के सामने I can sit for about 4-5, मतलब जितनी भी पूजाएं रहती हैं वहाँ पर सुबह 2:30 बजे जो सुप्रभातम होती है, वहाँ से लेके जितनी पूजा है, मुझे VIP में I get to sit there in front of God. Me and my family are allowed to sit in front of God. जब भगवान का अभिषेक होता है, उस पूजा का क्या, what is the name of that पूजा? हाँ, उद्यास्तमा नहीं, बीजी कहते हैं, और एक भगवान को श्रृंगार करिए वहाँ पे गया. Okay, so every year we have a fixed dates and I'm allowed to सुप्रभातम नहीं, I just forget it because 2 साल से हम लोग गए नहीं अभी तिरुपति. And in that puja I could forgive him. I could forgive him. It took me 2-3 years, but I'm talking in the year 2005 की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसमें नहीं पढ़ना. Are you getting this? Forgiveness is very, very important. Forgiveness आपको शांत कर देगा. Because now your focus is only on your goals. आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, आपको अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ बनानी है. मतलब you know you have to create lot of things for your children also, maybe for yourself also, for your happiness. Unless and until you do not forgive, you will not live the life of happiness. सपने पूरे नहीं होंगे. Now forgiveness, okay, ये जो मेरी बुक है ना 365 days, उसमें फिर every week you have some assignments. देखो ये जो बुक है उसके अंदर assignments होते हैं every week के. So now the assignments are only related to forgiveness. Now the assignments are only related to forgiveness. So forgiveness को लेके there are 3 types of forgiveness. Please understand now. Forgiveness जो होता है 3 तरीके का होता है. पहला तरीका है, पहला forgiveness है अपने आप को माफ करना. याद रखें, देखो आपने अपने आप का कितनी बार इंसल्ट किया है. मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, मेरे में तो अक्ल ही नहीं है. Inside you talk to yourself, मेरे तो वजन ज्यादा है, मेरे घुटने तो जरा भी बराबर नहीं है. अरे ये घुटनों ने तुम्हें जिंदगी भर चलाया है, आज थोड़ा बहुत दुख रहा है, आप उसको गाली दे रहे हैं. इतने सारे बाल हैं सर के ऊपर,
25 बाल गिर गए तो आप उसको गाली देना चालू कर देते हैं, अरे मेरा तो मुझे लग रहा है मैं तो टकला ही हो जाऊंगा। अरे क्या बोल रहा है भाई तू? अभी इस तरीके से अगर मेरे बाल गिरे ना तो मैं तो, अरे क्यों बोल रहा है, जरूरत नहीं है, गलती तुम करो और गाली दो अपने बाल को, मेरी आंखों को दिख नहीं रहा है। अरे मेरा एक कजिन है ना, दिस इज जस्ट अ जोक। तो मामा का लड़का है, तो हुआ ये कि उसको दूर का नहीं दिख रहा था, मतलब वो मोतिया हो जाता है ना बिकॉज ऑफ एज। तो उसने अपने बड़े भाई को बताया कि भाई थोड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। बोला क्या हो गया? तो बोला मेरा दूर का नहीं दिख रहा है। बोला दूर का नहीं दिख रहा है, क्या हो गया तेरे को? बोले हाँ वो थोड़ा ऑपरेशन करना लगा। अरे पगला है क्या? तो बोले वो सामने क्या है, वो देख वो क्या है? तो बोलता है मून है, मून। बोले इतना लंबा दिख रहा है अभी तेरे को, इसके लंबा उससे और लंबा क्या देखना है? And this is all the real jokes happening, होता रहता है। But my point is, we keep on blaming, complaining about our eyes, our दांत, our skin, our body. मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा। अरे इतने सालों से हार्ट काम कर रहा है, आप जिंदा हो। Keep on complaining of ourselves. Please understand. We keep on complaining of ourselves and we are expecting our heart to perform better. अब कोई आपका कंप्लेन करता रहेगा, आपका तो कोई काम में मन लगेगा क्या अगर आपका बॉस आपका कंप्लेन करता रहता है? Your performance will be affected or not. You keep on complaining about your husband, you keep on complaining about your children, you keep on complaining about your wife. What do you think? That is going to help? No. How many of you will agree with this? छोड़ यार, मरने दे साले, रोज कंप्लेन ही करता रहता है। अभी आएगा ना, देखना अभी उसका चालू हो जाएगा। सेम चीज आपके साथ भी हो रही है, आपके शरीर के अंदर भी हो रही है। Your heart will not perform better. Your lungs will not perform better. Your kidney will not perform better. Your diabetes will not come to normal. आपका ब्लड प्रेशर नहीं आएगा नॉर्मल। देखो डायलिसिस कल की बात है, ज्यादा लंबी नहीं है। वो दैट लेडी अंशु, शी इज शेयरिंग फ्रॉम एटलांटा कि भाई मेरे जो 4 डायलिसिस होते थे उसके जगह 2 हो रहे हैं और मैंने टेस्टिंग कराया है, उसके रिजल्ट्स रिपोर्ट आने वाले हैं, शायद मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ हर किडनी हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर। व्हाई? बिकॉज फॉर द लास्ट 2-3 months she has been attending our sessions, she has been listening to Ashmin ma'am, और फर्क कहाँ आया? उसके किडनी में आया। कल आप लोगों ने सबने सुना। It is simple techniques. डायलिसिस जैसे केस सॉल्व हो रहे हैं आपके आंखों के सामने। भाई अमेरिका में इन सब चीजों की रिसर्च करते हैं लोग। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड कराते हैं, स्कूल में कराते हैं। ओके, सो नाउ ग्रेटिट्यूड को लेके मिराया, मैं कल मैं छाया एंड मिराया वेंट फॉर थोड़ा उसको घूमने फिरने क्लब में लेके गए और वहां पर देयर वेर छोटे बच्चों की गेम्स रहती है ना, तो छाया उसके पीछे भाग रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन वी वर कमिंग बैक, मिराया स्टार्टेड सेइंग नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी, थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादी। Can you believe this? She has been taught in the school. Thank you everyone. अरे अब जब हम वापस आ रहे हैं, मे बी शी मस्ट हैव एंजॉयड। अब उसको ट्रेनिंग कहाँ मिली? स्कूल में मिली। मैंने नहीं सिखाया था, मैंने तो आई एम स्ट्रॉन्ग सिखाया। देखिए बच्चों को, मतलब ये जो टॉप स्कूल्स हैं बॉम्बे की, साउथ बॉम्बे की टॉप स्कूल्स हैं, मतलब लाख, आई मीन आई डोंट नो, बहुत बड़ा फीस भी रहेगा, और वहां पर छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को थैंक यू बोलना सिखाया जा रहा है, और हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं। ये तो थैंक यू अश्विन जी, अश्विन जी मिले, ये मुंजाल फैमिली मिली। Good morning, Rajan.
हाँ जी, गुड मॉर्निंग राजन सर, प्लीज मिस सरिता को मैम को होस्ट बना दीजिए एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूटेड रहें ड्यूरिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उन्होंने स्क्रीन शेयर करनी होगी. okay, perfect. I'll make her the Thank you. host. Okay, so let Thank me you. complete. So this is what Miraya is been taught in the school. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको थैंक यू बोलना सिखा देना, ट्रेनिंग देना, जो भी करना पड़े करना. जो आप आश्विनी मैम से सीख रहे हैं, अपने बच्चों को जरूर सिखाना, पोते पोतियों को सिखाना, क्योंकि थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ये जो सब चीजें हैं वो बहुत जिंदगी में उनके काम आएगी. अब आपने सीख लिया है, आपको समझ में आ गया. जब मीराया ये बोली थैंक यू दादाजी, आई वाज लाइक वाओ, मजा आ गया. उसको हम जब मतलब उसका खेलना कूदना हो गया सब कुछ, अब हम घर पे आ रहे हैं, गाड़ी में छाया की गोदी में बैठी है वो, और ऐसे करती है नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी. आई मीन अमेजिंग, थैंक यू दादाजी. So this is the part of her training, and this is also the part of your training. You have to be grateful, you have to forgive people. So 3 types of forgiveness. First thing is start forgiving yourself. और हमें वो होपनोपोनो की टेक्निक पता है. आपने अपने आप को बोलना है I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you darling, and I love you. Everybody can just feel these sentences. Everybody can just say to yourself, please say to yourself, I'm sorry, I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you so much. And I love you. Just feel your body. Just feel your body. And feel the vibrations of your body. Just feel your body. I love you, darling. Say it to yourself. I love you. Sir, I do this mala every day. आपने तो बताया ही नहीं हमको यार. Every day, sir, I do this mala. And even in the temple or in my ghar ka mandir, anywhere. Wow. It's very easy with the mala, sir. You can do it 108 times together. आपको फायदे हुए कुछ? बहुत अच्छा, sir. Superb. Thank you. So first is forgiving yourself. हाँ जी. सर मुझे भी बहुत फायदा हुआ. The day I did this, it was great. Wow. Second is forgive others. बाकी काफी लोगों ने जो आपके साथ में जो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपका नुकसान कराया है, आपका इंसल्ट किया है, मे बी फिजिकली कुछ मारा है, आई डोंट नो, जो भी हुआ है वो, अब लोगों को माफ करना है. That was their state of mind. That was their state of mind. And today you forgive him. माफ करो यार, जिंदगी बहुत छोटी है. ये सब नहीं करेंगे ना तो हमें बीमारी नहीं झेलनी. हमें हमारे खुद के लिए we have to forgive others. Please understand, start doing this practice. Forgive others. जो हुआ आपके साथ में वो पास्ट में हुआ, उसको भूल जाएं, खत्म करें. Third forgiveness is seeking forgiveness. आपने माफी मांगना है लोगों को, क्योंकि काफी लोगों को आपने हर्ट किया है और आपको पता ही नहीं. आपने कुछ बोल दिया किसी को, आपने तो अच्छे मन से बोला, पर सामने वाला झेल रहा है उसका दुख. तो तीसरा होता है सीकिंग फॉरगिवनेस, मतलब हमने किसी और से माफी मांगना. भैया मिच्छामी दुक्कड़म. Okay, so these are 3 forgiveness. So let me make Sarita ji the host, and I think इसमें कोई question पूछना मत, चुपचाप forgive कर देना. Let there be no doubt, let there be no questions about forgiveness. The reason is you have to forgive. बस आपको और कोई रास्ता नहीं है. Okay, so Sarita ji, are you there? Yes, sir. Yes, I am there. Okay, so I'm making you the host. Co-host, yes, sir. That will do. I'm making you the host only. ठीक है ना? नहीं, co-host. ठीक है sir. अरे आप host ही बन जाओ. ठीक है sir. Okay, and thank you very much, and welcome to our program, our session. And so we are all grateful for you to having coming here and sharing your PPT and sharing your knowledge. And I think Sarita ji is doing some sessions on forgiveness. Yes, sir. So वो गुवाहाटी से हैं, and we really welcome you.
And thank you very much. Thank you so much. Okay. Thank you so much, sir. Thank you to Welcome, Alka ji, Sarita ji. उन्होंने वो last session attend किया. And I mean, I don't know उन्होंने क्या बोला, क्या expectations है, but I will just repeat that. Thank you so much. And sir, आपको बोलना पड़ेगा, since I met you almost a year हो गया, you are becoming more and more handsome every day with your positivity. So these are teachings, and I must say कि मतलब मैं जो इसमें explanation दे रही हूँ, they have been helped a lot by ma'am's teachings and Rajan sir's teachings. मतलब आप लोग की teaching से I could explain this better. So gratitude to pranic healing too, by which I could जहाँ से हम adapt करते हैं इसको. So this is my understanding of the prayer, and एक चीज अपने को समझना होगा कि forgiveness is universal. It is no religion, कुछ नहीं है, and it makes us a better person. हम और अच्छे इंसान बन जाते हैं. But हम लोग क्यों कर रहे हैं, मैं before I share the PPT ये बताना चाहूंगी कि इसका मकसद क्या है. हम जो बोलते हैं, whatever we say, हम ये शब्द है ना बाहर से pick up किए हैं. We just repeat. हम बहुत बार ये प्रेयर कराते हैं, तुरंत लोग बोलते हैं शेयर द प्रेयर. तो इसका मकसद ये है कि द वर्ड्स जो हम बोले, हम इसको अगर समझ जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, देन वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन फील इट बेटर. वी कैन फील कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका हमारे पे क्या असर है. सो द वर्ड शुड कम फ्रॉम योर हार्ट. फाइनली जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, वर्ड्स क्या है, ओरिजिनल प्रेयर में क्या वर्ड्स है, इट डज नॉट मैटर. जो मैटर करेगा दैट विल बी आपके अंदर से क्या निकल रहा है, आपकी फीलिंग क्या आ रही है. तो मकसद यही है कि फाइनली यू फॉर्म्युलेट योर ओन प्रेयर. आप खुद अपने दिल से बोल पाए कि आपकी फीलिंग्स क्या है. ओके, आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. Yes, thank you. Yes. So now, before I go ahead, अपने will just pick up one main reason कि आज इस स्थिति में हम लोग क्यों पहुंचे हैं. That we are having to forgive. हमें forgiveness मांगना पड़ रहा है, खुद से भी औरों से भी. Why? The one main big reason is expectations. जो हम expectations build कर देते हैं किसी से कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो we get angry, या हम कुछ ऐसा कर देते हैं because we were expecting something else. Hence this need to give forgiveness. And जैसे सर ने बताया कि it is finally गुस्सा जो करते हैं अपने को हर्ट करता है. तो the biggest फायदा जो होता है, the benefits of doing forgiveness is a lot with improved relationships. आपके अच्छे होंगे, आपका self esteem, self love जो सब बार बार समझाते हैं ना, self love is so important, वो that will grow. And of course the major benefits are your body में क्या क्या फायदे होंगे, health में. All the जो दर्द है वो तो सिंपल ऐसे चले जाते हैं. People have been known to cure cancer also just by doing the forgiveness prayer. So मैंने ये forgiveness prayer को एक नया नाम भी दिया था उस दिन. I called it the freedom prayer. By the end of the session we'll understand इसको मैं freedom prayer क्यों बोलती हूँ. So we are going ahead with the session, with the presentation. The first line, हम लोग क्या बोलते हैं कि उस इंसान को इमेजिन करें. आप उस जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी हो, उनको जैसे याद करके आपको गुस्सा आ जाता है या दर्द हो जाता है, you really feel so hurt, you know, tightness in your chest. उनको याद करके, थोड़ा difficult होगा, I understand, but try and smile. Just imagine कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं. Okay, I have a PPT में I have given some small caricatures on the top. Please relate it and enjoy it together with it. So the first line is Atma Namaste, I salute the divinity in you. हम लोग प्राणिक हीलिंग में भी एक दूसरे को नमस्ते नहीं बोलते हैं, आत्मा नमस्ते, कि एक दूसरे को
सोल एनर्जी को वी आर बीइंग ग्रेटफुल, वी आर इन्वोकिंग द सोल एनर्जी। देखिए क्या होता है ना, व्हेन वी थिंक विद द माइंड, जब देन द माइंड इज सच कि वो फॉरगिवनेस करने को तैयार ही नहीं होता है। नहीं, उसने तो मेरे साथ ऐसे किया, मैं तो जाने नहीं दूंगी। You know, that is the sort of feeling comes with the mind. But the moment you invoke the soul, forgiveness comes from the soul. So that is the reason we are invoking the soul. आत्मा को नमस्ते कर रहे हैं, and हम सब में भगवान का हिस्सा है, we all know that. सब में अंश है भगवान का, तो उस अंश को हम उनकी वो अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करते हैं। आत्मा नमस्ते, मैं आपके अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। तो राइट इन द बिगिनिंग हम लोग माइंड को साइड कर दिए, वी आर टॉकिंग सोल टू सोल, ईच पर्सन। एंड नेक्स्ट वी अफर्म, हम सब परमात्मा की संतान है, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दिस वननेस, वी आर ऑल जस्ट वन, सब में एक ही एनर्जी फ्लो कर रही है। एंड that's why when we learned Ho'oponopono with sir, he told us कि वो एक, that is what we are using, ये एक एनर्जी जो सब में है वो ही यूज कर रहे हैं हम, to forgive one another and to even forgive for someone else. So we are all children of God and the same energy flows through all of us. Now we all make mistakes, we all are evolving. Evolution involves time, process and lots of mistakes. हम सबसे ही गलतियां होती है ना, किससे नहीं होती है? क्यों? ये एक, जब आत्मा का विकास हो रहा है इस धरती पे, हम एक्चुअली आए किस लिए हैं? हमारे आत्मा के विकास के लिए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ। एंड जब आत्मा का विकास होता है उसको समय भी लगता है, एक प्रक्रिया भी होती है और बहुत सी गलतियां भी हम करते हैं। अब व्हाट इज ये विकास? आत्मा का विकास होता क्या है? लाइक व्हेन यू आर यंग, हम लोग को नहीं चाहिए ये चाहिए वो इकट्ठा कर लूं, घर भी चाहिए, ब्रांडेड सामान चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। बट एज वी ग्रो ये सबसे अटैचमेंट कम हो जाते हैं, तो लाइफ बिकम्स सिंपलर, we leave all these behind. तो that is आत्मा की विकास भी वही होती है कि हम लाइफ को और सिंपल करते जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी से निकल जाते हैं। तो all these, ये जो भारीपन होता है, एंगर, रिजेंटमेंट, ये सब हम छोड़ के we move towards simplicity. That is evolution. अब इसको ओवरनाइट हम इवॉल्व नहीं हो सकते, इसको समय लगता है, मे बी कई लाइफ्स लग जाते हैं। एंड इसकी एक प्रक्रिया भी होती है, करेक्ट प्रोसेस। हाउ डू यू इवॉल्व? समटाइम्स वी गेट स्टक, वही जिंदगी मैम बताती है ना हमें, वही जिंदगी में हम उलझ जाते हैं। आए, बच्चे पैदा किए, उनको बड़ा किए, उनके बच्चे को पैदा किए, एंड वी आर स्टक, वी डोंट रियलाइज इवॉल्व कैसे, इसमें से निकल के इवॉल्व कैसे होए। उसके लिए सर्टेन टूल्स, चाहे एक गुरु को ले, यूज द करेक्ट क्लीनिंग मटेरियल्स, self awareness, self love, forgiveness and most of all gratitude. आप कहीं पे झाड़ू मारेंगे, बहुत हवा चल रही है रूम में, आप खिड़की खुला छोड़ दोगे, वो सफाई परमानेंट होगी? वो धूल आनी है। सिमिलरली इस आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आपकी सफाई परमानेंट हो। एंड बहुत सी गलतियां, नेचुरली गलती तो हम सब करते हैं, हम सब इंसान हैं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, दैट उन गलतियों से हम सीखें, उनसे हम, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन आती है, आई हैव टेकन दिस प्रेयर, दिस इज द मोस्ट, जिसमें सारे लाइन्स है। लेटर we will come to, I'll tell you, we can have a shorter version of it also. So next line है, I choose to forgive you for all your mistakes, for all the pain and hurt you have caused me. मैं तो यहाँ पे है, I choose, मैं चयन करती हूँ कि आपने जो भी गलतियां की है, जो भी आपने मेरे को दर्द दिया है, जो भी तकलीफ दी है, मैं चूज करती हूँ कि मैं आपको माफ करूं। It is a choice you are making. अब यहाँ पे है ना, you don't go into any गुस्सा और anything, मतलब you just have to release. मैं सबसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो just love yourself. wow, कि मैं इस स्टेज तक पहुंची हूँ,
बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आई एम रेडी टू फॉरगिव, मैं माफ करने के लिए तैयार भी हुई हूँ, चाहे आज अंदर से नहीं आए, बट ये रेडीनेस टू फॉरगिव, उसके लिए जस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। किसी और को मैं ये पावर नहीं दूंगी कि वो मेरे को गुस्सा करे, वो मेरे को तकलीफ दे। इट इज माई चॉइस, मैं कैसे रिएक्ट करूं मेरी चॉइस है। आपने अपने दर्द से जाने या अनजाने में, अपने विचारों से, कथन से या कर्म से आपने मेरे को तकलीफ दी, वो सबको मैं जाने देती हूँ थ्रू योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। बहुत बार लोग अनइंटेंशनली भी हमको हर्ट कर जाते हैं, उन्होंने चाहा ही नहीं, वो सोचे ही नहीं, बट फिर भी हमें दर्द हुआ, कुछ ऐसा बोल गए and it hurt us, but that person didn't mean it, but somehow we got hurt। उन सब के लिए भी, because human beings है ही ऐसे ना, we are मतलब ज्यादा unintentionally बहुत सी बातें सोच लेते हैं। वो आज ऐसी कैसे लग रही है, कैसे कपड़े पहन के आई है, isn't it, कैसे बैठी है, all these are also hurtful statements। अगर आपने बोला भी नहीं, आपने सिर्फ सोचा भी है, even through your thoughts, किसी ने आपके लिए ऐसा सोचा, कुछ गलत सोचा, तो भी आप माफ करने को तैयार, यू आर रेडी। आई लेट गो ऑल द हर्ट एंड पेन ऑफ पास्ट नेगेटिव मेमोरी। मेरा सारा जो गुस्सा, सारा दर्द, सारा जलन को बाहर निकाल रही हूँ। जब ये स्टेटमेंट अपने बोलते हैं ना, ये फील करते हैं अंदर से कि इन सबको मैं बाहर निकाल रही हूँ, मेरे अंदर अब इनके लिए जगह नहीं है। आई लव माई सेल्फ टू मच, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इनको अब मेरे पास नहीं रहने दूंगी, मैं इनको सबको जाने दे रही हूँ। आई रिलीज यू, प्लीज गो इन पीस। अब देखिए, जब अब किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके बारे में नफरत या घृणा, कुछ भी, तो वो आपसे बंधे रहते हैं, एक कनेक्शन बन जाता है उनके साथ। इवन इफ यू डोंट वांट, आप ही वो कनेक्शन बना रहे हैं। मे बी दैट पर्सन हैज फॉरगॉटन यू, बट आप उनको बार बार याद करके, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं छोड़ूंगी नहीं। आप वो कनेक्शन, एक तार बंधा हुआ रहता है उनके साथ, तो वो तार को आप जाने दे रहे हो। आई रिलीज यू, मैं आपको रिहा करती हूँ फॉर माई सेल्फ। ये याद रखें, आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, उनपे कोई आप कृपा नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। प्लीज गो इन पीस, आप उनको भी जाने दे रहे हो, उनको भी ब्लेस कर रहे हो कि वो भी शांति में रहे, आप शांति में प्रवेश करें। यू आर कंप्लीटली फॉरगिवन, मैंने आपको पूरी तरह से माफ किया, टोटली। अंदर से, ऊपर से बोलना शुरू कीजिए, जितनी बार करेंगे ना, इट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम इनसाइड। ओम शांति 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 ओम। तो एज वी हैव लर्न्ड, ओम इज द साउंड ऑफ क्रिएशन। ओम हम यहाँ जब बोलते हैं, ओम हम लोग शांति, पीस क्रिएट कर रहे हैं, शांति क्रिएट कर रहे हैं। तो ओम शांति शांति शांति। एंड देखिए, मैं बीच में एक गैप दे रही हूँ। ओम और शांति के बीच में जो गैप है, दैट इज द गैप ऑफ नथिंगनेस। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ आप है, आपका कनेक्शन है ईश्वर के साथ। एंड लास्ट में जो ओम वापस क्यों बोलते हैं, कि दोनों ओम के बीच में आप अपनी शांति को शील्ड कर रहे हो, अपनी शांति और सामने वाले की शांति को शील्ड कर रहे हो। इसके बाद यू विजुअलाइज योरसेल्फ बिकमिंग ब्राइटर नेचुरली। आपने इतना दर्द को जाने दिया है, नेचुरली आपका रोम रोम खुश होगा, आपका रोम रोम सुनहरा हो जाएगा। तो वो महसूस करें कि आप रोशन हो रहे हैं, अंदर से एक एक सेल आपका रोशन हो रहा है। नाउ पहले हमने क्या किया, वी फॉरगिव। आप जब किसी को माफ करते हो, तभी आपका हक बनता है कि आपको भी माफी मिले। एंड जब और कोई गलती करता है, ये कभी ना सोचे कि उसने गलती की, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने मेरे पे चिल्लाया तो मेरे को चिल्लाना पड़ा, मेरे को उस पे गुस्सा होना पड़ा।
स्टॉप ब्लेमिंग. ये ब्लेम कुछ नहीं है, चॉइस अपनी थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूं. मैं चूज की कि मैं गुस्सा से रिएक्ट करूं या मैं उसके बारे में बुरा सोचूं भी, या किसी और को उसके बारे में बुरा बोलूं. तो आई टू हैव मेड माई शेयर ऑफ मिस्टेक्स. सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस दैट मेरे से भी गलतियां होती है, मैंने भी गलतियां की है. I too have caused you pain and hurt. जाने अनजाने में मैंने भी आपको बहुत दर्द दिया है, मैंने भी आपको बहुत दर्द पहुंचाया है, चाहे मैंने जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो. अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना, बचपन से जो ट्रेनिंग मिली है कि अपने वी डोंट रियलाइज खुद के बारे में या दूसरों के बारे में हम बुरा सोचते रहते हैं, उसको बोलना भी नहीं पड़ते. अनइंटेंशनली वी आर नॉट डिजायरिंग, बट वो सबकॉन्शियस माइंड को हमने ही ऐसे ट्रेन किया है कि वो दूसरों के बारे में बुरा सोचता रहता है, बुरा करने के बारे में सोचता है. एंड उससे दूसरे को वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, उनको तकलीफ होती है. सो फॉर ऑल दैट पेन, ऑल दैट दर्द जो मैंने आपको दिया है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ. आप भी मुझे क्षमा करें और सारी पुरानी बातों को जाने दें. You also forgive me and let the past be. सारी पुरानी बातों को प्लीज आप भी सबको भूल जाएं. You also please let go. आप भी जो ये डोर बंधा हुआ है ना, आप भी अपने तरफ से उसको जाने दें. You also please let go. I truly want that there be peace and love between us. मैं दिल से चाहती हूँ कि आपके और मेरे बीच में शांति और प्रेम रहे. ये एक्चुअली आपको दिल से महसूस करना पड़ेगा, दिल से चाहना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में अब शांति है और प्रेम है. ऐसी स्थिति तक पहुंचना है हम लोग को कि कल ऐसा दिन आए कि आप उनके बारे में सोचो ना तो आप को मतलब आपके चेहरे पे हंसी आए एंड खुद पे हंसो. मैं कितनी नादान थी कि मैंने उनके बारे में ऐसा, इतनी नफरत में मेरे दिल में भर रखी थी. तो ऑल दैट नफरत, ऑल दैट दर्द खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी प्लेन पीस एंड शांति. पीस, लव और प्रेम आप दोनों के बीच में, और कुछ नहीं रहेगा. May God forgive our negative deeds and may His blessings be with you and with me. भगवान और आपके और मेरे जो भी हमने बुरा सोचा, मेरे बुरा किया, आखिर में God is all love. जो ईश्वरी है ना, God is only love. तो वो सबको माफ करते हैं. हमने जो भी गलत काम किया है वो सबके लिए माफी चाहते हैं. भगवान हम दोनों को माफ करे और हम उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे. His blessings be with you and with me. So लास्ट में एक प्रेयर करते हैं ईश्वर से कि आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें और हमारी मदद करें कि हम और इवॉल्व होएं और हमारे आत्मा के विकास के लिए हम आगे बढ़ें. May peace be with you and with me. हम दोनों के साथ शांति बनी रहे. Om Shanti 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 Om. And we end again with Om Shanti Shanti Om with that invocation for peace. Again हम शांति को आह्वान करते हैं. And at the end again you visualize yourself becoming lighter, released of a big load. अपने आप को और हल्का महसूस करें, जैसे एक बोझ उतर गया है. जैसे अभी सर ने बताया ना कि वो भारी बैग लेके हम चढ़ रहे हैं, ऐसे महसूस करें वो भारी बैग आपने उतार दिया है, छोड़ दिया. अब आप सोचिए कितना हल्का आप महसूस करेंगे, जैसे कोई आप उड़ रहे हो. उतना हल्कापन, उतना सुनहरापन आपके अंदर, वो रोशन. दैट इज हाउ वी शुड बी फीलिंग. तो इसके लास्ट में हम जब नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको 7 बार करते हैं, 7 टाइम्स करके जैसे छोटी मोटी किसी ने आपके साथ कोई दर्द दिया हो तो वो हम बोलते हैं कि एक सिटिंग में हम इसको 7 बार करें, 7 दिन तक करें तो वो फॉरगिवनेस हो जाता है, वो दिल में हल्कापन आ जाता है.
बट किसी ने बहुत जोर आपको दर्द दिया हो, बहुत बुरा किया हो, प्रॉपर्टी के मामले में या रिलेशन के मामले में किसी ने बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई हो, जो सालों से आपके अंदर में आप उस इंसान को क्षमा नहीं कर पा रहे, तो ये प्रेयर आप कम से कम 21 दिन या 1 महीने तक करें, 7 times in one sitting. देन वो डीप क्लेंजिंग आ जाएगी। एंड लास्ट में आपको उस इंसान के लिए सहानुभूति महसूस करनी है। क्यों? वी कैन नॉट फॉरगेट कि उन्होंने हमें जो तकलीफ दी वो हमारा कर्म था। वो तो सिर्फ डिलीवरी बॉय बन के आए आपको अपना कर्म का रिजल्ट देने के लिए। एंड इस चक्कर में उन्होंने अपना कर्म भी खराब किया। उनको कुछ बुरा करना पड़ा, कुछ बुरा बोलना पड़ा, सो दैट आपको अपना कर्म की डिलीवरी हो जाए। तो वो तो सिर्फ डिलीवरी बॉय थे। तो इमेजिन, तो उनके लिए कंपैशन फील करना बहुत जरूरी है। दैट इज अ बिग मस्ट। एंड कंपैशन तो बोलते ही इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। बोलते हैं ना, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंसान फॉरगिव कर पाता है। जैसे मतलब आई ऑलवेज लाइक टू थिंक दैट वे। वो हनुमान जी गए थे ना लंका, उनको रस्सी से बांध दिया था। उन्होंने कैसे वो रस्सियां तोड़ी थी? बिकॉज ऑफ हिज पावर। तो आप में भी वही पावर है। ये जो नफरत है, ये जो गुस्सा है, ये आपको भी बांध रखा है। उन सबको आज हम तोड़ना शुरू करेंगे। एक झटके से उसको तोड़ के उससे बाहर निकलना है। तो एंड ग्रैटिट्यूड तो बहुत जरूरी है कि उस इंसान ने आपको कोई एक मौका दिया, वो जो भी कुछ किए आपके साथ, आपको उससे कुछ सीखने को मिला। यू लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट। तो हाउ मच ग्रैटिट्यूड उस इंसान के लिए आप फील कर सकते हैं? You can feel so much gratitude. Wow, आप मेरी जिंदगी में आए, आपने इतना इम्पोर्टेंट मेरे को लेसन सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको, दुनिया में आप सबको ब्लेस कर सकते हैं कि जिनके भी दिल में नफरत है, घृणा है, ये बोझ उठाए फिरे हैं, उन सबको ब्लेस करती हूँ कि उन सब में भी ये शक्ति आए कि वो फॉरगिवनेस कर पाए, वो सबको क्षमा कर पाए। So that is the end of my presentation. Now we shall go into, अगर जैसे सर ने बताया, we can do the forgiveness prayer. सर आप जो कराते हैं that is always superb, but I will just try. हम लोग जैसे करते हैं प्राणिक हीलिंग में, I will just, तो मैं क्या करती हूँ, ये सबसे लंबा वर्जन है। मैं एक बार इसको इंग्लिश और एक बार हिंदी में कराती हूँ, एंड जो 5 बार और करेंगे that I will do the shorter version. Okay, thank you so much. Yes, so let us all sit straight. सीधा बैठते हैं with our back straight. And हम forgiveness साधना करने जा रहे हैं। उसके लिए हम पहले भगवान का आह्वान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, Supreme God, thank you for bringing us to this session. आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें यहाँ आज forgiveness सीखने के लिए लेके आए हैं। आप हमें शक्ति दें कि हम इसको प्रैक्टिस कर पाए। हमारे आत्मा के विकास के लिए, हमारी दिल की खुशी के लिए, हमारे शरीर के लिए हम ये करना चाहते हैं। हमें नहीं आता ये कैसे करना है, आप ही प्लीज हमें सिखाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The first time we do it in English. Imagine the person in front of your eyes, the person who has given you a lot of pain. Just thinking about the person causes you hurt, causes you anger. वो आपके आज सामने बैठे हैं। आप लोग दोनों ने रिजॉल्व किया है, आप एक दूसरे को माफ करोगे।
Just smile at each other. आप उनके को देख के मुस्कुराएं. Atma Namaste. I salute the divinity within you. We all are children of God. We all make mistakes. We are all evolving. I choose to forgive you for all your mistakes, for all the pain and hurt you have caused me through your thoughts, words, and actions, either intentionally or unintentionally. I let go all the hurt and pain of past negative memories. Please go in peace. You are completely forgiven. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Visualize yourself becoming brighter. Every moment, feeling lighter and brighter. I too have made my share of mistakes. I have caused you pain and hurt, intentionally or unintentionally. You also forgive me and let the past be. You also please let go. May God forgive us for our negative deeds, and may his blessings be with you and with me. Om Shanti, 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 Shanti. Om. Now visualize yourself becoming lighter, जैसे बहुत भारी बोझ आपके ऊपर से उतर गया हो. दूसरी बार हिंदी में करते हैं. उस एक इंसान को अपने सामने फिर महसूस कीजिए आपके आगे बैठे हुए हैं. आत्मा नमस्ते. तभी तो मैं बोलती हूँ यहाँ करो. मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ. हम सब परमात्मा की संतान हैं. हम सभी गलतियां करते हैं. हम सभी विकसित हो रहे हैं. आत्मा के विकास के लिए समय, प्रक्रिया और बहुत सी गलतियों से गुजरना होता है. मैं आपको आपकी सारी गलतियों को मैं ना वो पहले करने का चयन करती हूँ. क्लीन करना पड़ेगा. उस दर्द और आहत के लिए जो आपने मुझे दिया है, जो आपने जाने अनजाने में अपने विचार, कथन या कर्म से किए हो. मैं सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारी जलन को बाहर निकाल रही हूं. मैं आपको रिहा करती हूं. आप शांति में प्रवेश करें. मैंने आपको पूरी तरह से माफ किया. ओम शांति, शांति, शांति. ओम. अपने आप को खूब रोशन होते हुए महसूस करें. मुझसे भी गलतियां हुई है. मैंने भी जाने अनजाने में आपको बहुत दर्द दिया है. आप भी मुझे क्षमा करें और सारी पुरानी बातों को जाने दें. आप भी अपने आप को मुक्त करें. मैं दिल से चाहती हूं कि आपके और मेरे बीच में शांति और प्रेम रहे. भगवान आपके और मेरे नकारात्मक कर्म को माफ करे और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे. हम दोनों को शांति मिले. ओम शांति, शांति, शांति. ओम. अपने आप को खूब हल्का होते हुए महसूस करें, जैसे कि एक बहुत भारी बोझ आप पे से उतर रहा है. आप हल्के हो रहे हैं. आप में उड़ने की शक्ति आ रही है, खुश होने की. जस्ट फील दैट हैप्पीनेस. कितने खुश हो रहे हैं आप. जबरदस्ती एक बोझ उठाए चल रहे थे. फॉर द थर्ड टाइम. Atma Namaste. I salute the divinity in you. We all are children of God. We are all evolving and we all make mistakes. I choose to forgive you for all the pain and hurt you have caused me. I release you. Please go in peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.
I too have made my share of mistakes. Please forgive me for all the pain and hurt that I have caused you. You also let go. Let God's blessings be with you and with me. May peace be with you and with me. Om Shanti, 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 Om. आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी विकसित हो रहे हैं। मैं आपको आपकी सारी गलतियों के लिए क्षमा करती हूँ। मैं आपको रिहा करती हूँ। आप शांति में प्रवेश करें। ओम शांति, 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 ओम। जाने अनजाने में मुझसे भी गलतियां हुई है। आप भी मुझे क्षमा करें और सारी पुरानी बातों को जाने दें। भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम दोनों को शांति मिले। ओम शांति, 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 ओम। For the 5th time, continue to imagine the person in front of you, the same one person. Atma Namaste. I salute the divinity in you. We all are children of God. We are all evolving and we all make mistakes. I choose to forgive you for all the pain and hurt you have caused me. I release you. Please go in peace. Om Shanti, 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 Om. I too have made my share of mistakes. Please forgive me for all the pain and hurt that I have caused you. You also let go. Let God's blessings be with you and with me. May peace be with you and with me. Om Shanti, 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 Om. छठी बार। आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी विकसित हो रहे हैं। मैं आपको आपकी सारी गलतियों के लिए क्षमा करती हूँ। मैं आपको रिहा करती हूँ। आप शांति में प्रवेश करें। ओम शांति, 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 ओम। जाने अनजाने में मुझसे भी गलतियां हुई है। आप भी मुझे क्षमा करें और सारी पुरानी बातों को जाने दें। भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम दोनों को शांति मिले। ओम शांति, 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 ओम। For the last time, Atma Namaste. I salute the divinity in you. We all are children of God. We are all evolving and we all make mistakes. I choose to forgive you for all the pain and hurt you have caused me. I release you. Please go in peace. Om Shanti, 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 Om. I too have made my share of mistakes. Please forgive me for all the pain and hurt that I have caused you. You also let go. Let God's blessings be with you and with me. May peace be with you and with me. Om Shanti, 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 Om. अपनी आंखें को बंद ही रखें। इस एनर्जी को फील करें, इस ब्लिस को, ये शांति को। इसके अंदर आपके एक एक रोम के अंदर इसको फील करें। एक बहुत सुनहरा प्रकाश आपको घेरे हुए है। Just feel the energy of that golden light. That's God's energy surrounding you. Forgiveness is humility. आप बहुत humble होके
करते हो। ह्यूमिलिटी इज बीइंग क्लोजर टू गॉड। आप वापस भगवान से कनेक्शन हो रहा है। जब आप गुस्सा थे ना, आप भगवान से दूर चले गए थे। फॉरगिवनेस में आके वो कनेक्शन वापस बना है। उस कनेक्शन को फील कीजिए। I let go, just let go everything, all negativity within you. Just be in peace. Love yourself, hug yourself. खुद से मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने आज forgiveness का चयन किया है। Thank you. उस इंसान को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में रहे, तो विजुअलाइज कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत अच्छा रिश्ता है। उस विजुअलाइजेशन को पावर दीजिए। अगर वो ऐसा इंसान है जिसको आपको नहीं चाहिए कि वो आपके जीवन में हो, या ऐसा इंसान है जो शायद इस दुनिया में भी ना हो, तो आप इमेजिन, विजुअलाइज कीजिए कि वो आपसे दूर चले जा रहे हैं। एक सफेद रोशनी है, उसमें वो शांति में प्रवेश कर रहे हैं, आपके जीवन से दूर। अपनी खुशी को फिर से महसूस कीजिए, शांति को महसूस कीजिए। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम ये कर पाए हैं। हमें ताकत दे कि हम इसे रोज कर पाए। You can open your eyes with a big smile, a big smile. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कोई संदूक का ताला खुल गया। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Wonderful experience. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you, ma'am. Thank you, Sarita ji. You have a beautiful voice. Ma'am, बहुत अच्छा लगा. Very nice, very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you, Sarita ji. Thank you so much. बहुत ही बढ़िया। Sir, actually your voice adds to your prayers. Amazing, Thank you so much, amazing. ma'am. Thank you This so prayer was Amazing prayer, ma'am. Thank you so much. Thank you. Sir, इनकी आवाज और add करी उस prayer की beauty को. It was amazing, absolutely बहुत मजा है, बहुत मजा है। Thank you very much. so much. And I Sir, have to आपके go, बात so बोले. I would like, Thank you so much. I would like to attend your sessions also now. Thank you, Sarita ji. Similar name. Thank you so much, Sarita ji. I love your Totally name. blessed. Thank you so Totally much. blessed. Just Thank you because so of much. you that we could do this today. Thank you. I am grateful to I would, everybody. अभी आप जब भी मिल रहे हैं, तो please, I would like to come kindly inform all of us that whenever you are having this session of forgiveness, we would all like to attend. So at present we are doing on Thursdays at 9 p.m. But जैसे हमने 3 सेशन किए हैं अभी तक, we have done for relationship and for self forgiveness. अभी अगला वाला हम लोग मनी के लिए forgiveness कर रहे हैं. Wow. Okay, kindly inform us because this was amazing. I would love to attend. Thank Sir, you. send the Thank you very link. much. I have to leave, so please. Sir, I link couldn't. के लिए बोल दीजिए, link भेज देंगे हम लोग को. हाँ sir, I'll do that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Sarita ji. Thank you. Sarita ji, great day, Sarita ji. You are the host. Thank you, madam. Thank you very much. I gave the hosting right to. No, Sarita ji, you can end the meeting. Okay. Sarita ji, you can अच्छा, end the the hosting meeting. right. I have a question. Yes, ma'am. please. Sarita ma'am. Sarita ji. हाँ बोलिए. Thank you, ma'am. Ma'am, अगर ये हेलो मैम, हाँ बोलिए ना. और ये फॉरगिवनेस की प्रेयर हमें मास में कर सकते हैं? मास फॉरगिवनेस प्रेयर और मास ग्रेटिट्यूड तो पता है. नहीं, बट इसमें बेटर रहता है आप एक इंसान को लेके करें कि जो इंसान, सब इंसान आपको अलग अलग देते हैं. यस मैम, मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका प्रथम पुण्य स्मरण है, तो पहले किया है इंडिविजुअली, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब जो भी परिवार वहाँ पे रहेंगे
वो मास ग्रेटिट्यूड और ये मास फॉरगिवनेस उनके लिए करें। वो कर सकते हैं, बट मतलब मैस ग्रेटिट्यूड आप सबको करवा सकते हैं, बट जब आप खुद करें ना तो एक इंसान को इमेजिन करके करें तो बेटर होता है। बट हाँ, बट इट इज अलाउड, जब आपको प्रैक्टिस हो जाता है ना तो आप कई सब इंसान को जनरल फॉरगिवनेस कर सकते हैं, कई इंसान को इमेजिन करके। शारदा जी आप होस्ट बन गए हैं, कैन यू प्लीज गिव बैक द होस्टिंग राइट्स टू मी? शारदा जी। शारदा जी आप सुन पा रहे? So we can end the session. I think everyone will have to exit because So thank you everyone. So we'll like to close the session now. Actually, I've given the hosting rights back to sir, and sir निकल गए तो वो शारदा जी host बन गई. Acha, so we can all just leave then. Yes, we Thank you can all everyone, and keep practicing. Thank you so much. Yeah, Sonia ji, you can do this 3 times a day max. वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ वो पड़ा हुआ है ना, वो और पानी पी लिया? उधर रखा है जहाँ तुम बैठी थी। अगर मैम तो बात कर रहे हो, वो भी अंदर जा सकते, चाय पी रही हेलो, अभी बनाना है। ये इतने तो रखी। हाँ, ये उतार। अच्छा, ओहो, ये काम कर रहे हो। Wow.